Narayan. In this video, I have selected one small event, or you could say a story from Mahabharata. This is the story of the pupil Upamanyu, who is living as a disciple in the ashram of Rishi Ayodhya. Ayodhya has three such pupils, one of which is Upamanyu, the other two are Aruni and Ved. These three are studying together. And Dhomya in particular, I would say only Dhomya. Dhomya actually takes the trial of the extent of submission and devotion of each of these three pupils of his. And I'm going to relate to you the trial of Upamanyu, that how he instructs Upamanyu and how he teaches him to share his food with everyone and also develop extreme devotion and submission towards his own guru. And this submission and devotion is actually the mandatory process for any pupil, owing to which he can and he is able to melt down his pride. So once his pride gets melted down, he becomes eligible to receive the divine knowledge, and the knowledge that comes to him ascends in measure. It actually multiplies by its own manifestation, but for that he needs to be completely in submission and develop a godly devotion towards his own guru. Only then the guru actually conveys and bestows this divine knowledge on his pupil. So Upamanyu is quite fat, and his guru wants to reduce it to a single body, a fit body. And then he also teaches him that you must share your food, whatever you get, you must share it with others and then eat it, and eat in measure, and also develop submission and devotion by actually offering your food to someone else first and then having it yourself. This will actually suppress your pride, and this suppression of pride is very, very important for you to accept the divine knowledge that I am going to bestow it on you. You must have this submission and devotion. Otherwise, if you think that you are as a whole, you know much better than me, the divine knowledge that I'm going to bestow it to you will never enter into your mind. And even if after listening it, you will not understand it, and that knowledge itself will not manifest itself and grow in measure in your mind, and it shall not remain in your memory. It shall actually forsake your memory also. So that knowledge is of no use if I give it to you and if it does not stay in your mind forever. So this is the trial of Upamanyu by his guru Dhomya, Ayodhya, but I would say Dhomya. ये जो वीडियो के लिए मैंने एक सुंदर कथा ली है, महाभारत से ली है, और अयोध्या नाम के एक बहुत ही प्रख्यात ऋषि है, उसके आश्रम में 3 शिष्य उनके हैं। एक उपमन्यु है, एक अरुणि है और एक तीसरा है वेद। सो तीनों का वो परीक्षण करते हैं कि वह तीनों ज्ञान देने योग्य है कि नहीं, और इनका समर्पण और गुरु भक्ति कितनी है। तो उनकी ये परीक्षा की जाती है उनके गुरु द्वारा। और उपमन्यु की जो परीक्षा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वीडियो में। उपमन्यु बहुत ही रुष्ट पुष्ट होते हैं, खा पी के मोटे से होते हैं। तो गुरु को उनको थोड़ा ये सिखाना है कि आपको जो भी भोजन मिले आपको सभी के साथ बांट के खाना है, आप अकेले ही नहीं खा जाइए। आपको जो भी मिले वह पहले आप दूसरों को दो और फिर आप स्वयं खाइए। और उनको ये भी सिखाना है कि जैसे गुरु भक्ति बढ़ती है और समर्पण बढ़ता है, और वह समर्पण लगभग संपूर्ण और सर्वस्व समर्पण कर देता है अगर कोई शिष्य गुरु के प्रति, तो उन पर गुरु कृपा ऐसी होती है कि गुरु स्वयं साक्षात, जो त्रिदेवों के अवतार माने जाते हैं, गुरु में ही नारायण है, महादेव है, ब्रह्मदेव है, तो गुरु ही साक्षात सभी जो दिव्य ज्ञान है वह उनको दे देते हैं। पर गुरु की प्रसन्नता और गुरु के सामने शिष्य को उसकी पात्रता सिद्ध करनी होती है, और पात्रता सिद्ध करने के लिए उसको समर्पण की आवश्यकता है। और समर्पण ऐसा कि वह अपना सर्वस्व ही दे दे, सौंप दे अपने गुरु को, और तभी ही गुरु कृपा होती है। और गुरु के कृपा के साथ ही
भगवत कृपा भी होती है। और शास्त्र तो यही कहता है कि गुरु के समर्पण में जाने से और गुरु को आदर सम्मान और गुरु की सेवा करने से पंच देवों की सेवा हो जाती है। महादेव की, नारायण की, सूर्य देव की, माता जी की और गणेश की, जो शिव पुराण में पंच देव कहे गए हैं स्मार्त में। तो इन सभी की पूजा गुरु के चरण में जाने से, गुरु के चरण की सेवा, गुरु की सेवा करने से ही सभी देवों की सेवा भी हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा सूत्र है कि हमें भिन्न भिन्न देवताओं के पास नहीं जाना है, क्योंकि गुरु में ही साक्षात ये सभी देव देवियां उपस्थित है। कैसे उपस्थित है? ज्ञान के रूप में। और जो शास्त्र का ज्ञान है वो उनके पास है। शास्त्र के ज्ञान के पीछे का जो रहस्य है, जो और किसी को नहीं पता है, वो केवल गुरु के माध्यम से ही हमें मिलता है। और गुरु ने तप करके योग बल से वह ज्ञान प्राप्त किया है। वह जो, अगर आप कह सकते हैं, साइंस भी कहता है कि काफी ज्ञान आकाश मंडल में घूम रहा है। तो वहां पर ऐसे परमाणु हैं जो ज्ञान वाले परमाणु हैं, तो उसको तप के द्वारा अपने समीप लाना और अपने अंदर साक्षात्कार करवाना और वो ज्ञान को अभिव्यक्त करवाना अपने अंदर, वह गुरु अपने तप से करता है। जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान हो गया है, वह गुरु अपने तप से ज्ञान फिर से लेके आता है और पृथ्वी वासियों को फिर से देता है, ताकि उन सभी का उद्धार हो। यही उनका उद्देश्य होता है। तो उपमन्यु उनका एक शिष्य होता है, अयोधौम्य का, मैं धौम्य ही कहूँगा आगे। तो उनकी परीक्षा होती है, तो वो बहुत ही मोटे होते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि वह गुरु उनको पूछते हैं कि आप उनको एक कार्य देते, सभी शिष्यों को कार्य देते हैं। तो उपमन्यु को गाय संभालने का कार्य दिया जाता है। और गुरु कहते हैं कि आप जाइए, जो यहाँ पर गौशाला है वहाँ पर आप जाइए और गायों को संभालिए, गायों को घास खिलाइए, विचरण करने लेके जाइए जंगल में। और वो जो घास खाती है पौष्टिक, उनको वो दीजिए, आहार उनका जो भी है, साफ सफाई कीजिए गौशाला की। ये उनको कार्य दिया गया है और ये कार्य बहुत अच्छी तरह उपमन्यु निभाते हैं। और फिर उनके पास आकर नमस्कार करते हैं कार्य पूरा होने के बाद। तो गुरु उनको कहते हैं कि आप इतना काम करते हो पूरा दिन, फिर भी आप इतने पतले क्यों नहीं होते? आप मोटे हो, रुष्ट पुष्ट हो, तो आपका कारण क्या है? आप कैसे अपने आप को जीवित रखते हो? क्या कौन सा माध्यम है? तो उपमन्यु कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ घरों के पास, जो गृहस्थ होते हैं उनके पास मैं भिक्षा मांग कर जो मिलता है वो मैं खाता हूँ, उसी पर मैं निर्भर हूँ। तो गुरु उनको कहते हैं कि आप ऐसा ना करें। आप भिक्षा मांगने जाए तो आपको जो भी मिलता है, पात्र में आपको जो भोजन मिलता है, वो सबसे पहले मुझे आके दे दीजिए। अगर मैं आपको देना चाहूँगा तो आपको दूँगा। पहले मुझे आपको ही देना है, आपको मुझे ही देना है और फिर आपको अपना काम करना है। आप पहले स्वयं ना खाइए। तो ये अनादर हो गया गुरु का। तो वह मान जाते हैं, वह बोला ठीक है। और फिर जो भी उनको मिलता है तो वह गुरु को दे देते हैं। तो और गुरु थोड़े दिन उनको कुछ देते ही नहीं है। जो भोजन उनको मिल जाता है वह उपमन्यु को नहीं देते हैं। तो उपमन्यु फिर भी स्वीकार करते हैं, बोले गुरु की आज्ञा है, कुछ भोजन मुझे अभी, मेरे लिए ही भोजन ठीक नहीं होगा, इसलिए गुरु ने मना किया होगा। तो वह चले जाते हैं, अपना कार्य करते हैं। तो फिर गुरु फिर से उनको देखते हैं कि भाई, मैं आपको भोजन जो आप लाते हैं मेरे लिए भिक्षा मांग के, तो आप जो है वह अभी भी वैसे के वैसे ही है, आपका शरीर वैसा ही रुष्ट पुष्ट है, आप पतले क्यों नहीं हो रहे हैं? आप बहुत मोटे हैं। तो भोजन तो आप मुझे दे देते हैं और मैं उनमें से कुछ आपको देता ही नहीं हूँ, तो आप कैसे फिर शरीर को आप ऐसे ही रखते हैं? तो उपमन्यु कहते हैं कि गुरुदेव, आपने जो भोजन ले लेता है तो आप ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से भिक्षा मांगने जाता हूँ और उसमें जो जो मिलता है तो वो मैं खा लेता हूँ। तो मैं उस पर निर्भर हूँ अभी। तो गुरुदेव फिर उनको डांटते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया है, तो आपको मेरी आज्ञा माननी चाहिए थी। और ऐसा करके आप जो सही में जो भिक्षुक है, जो सन्यासी है, वानप्रस्थ है, उनका भोजन, उनका आहार आप छीन रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार पहले है। वह जो आश्रम में है, वानप्रस्थ जो आश्रम वाले होते हैं, तो वो
जो खाना बन जाता है और खाना खाने के बाद घर में पहले धुआं उड़ना बंद हो जाता है, माने खाना बन गया है, उसके एक प्रहर के बाद में लोग जाया करते थे भिक्षा मांगने। इसका अर्थ ये है कि गृहस्थ को भी हम इतना कष्ट न दें। गृहस्थ में खाना बन गया है, उसके बाद एक एक डेढ़ प्रहर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि सभी ने खाना खा लिया होगा, तो हम उसी समय जाए तो जो बचा होगा तो हमें मिल जाएगा। हमें ऐसे समय पे नहीं जाना है कि जहाँ खाना गरम गरम बन रहा है। ये वानप्रस्थ के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। तो वैसे जो वानप्रस्थ है, सन्यासी जो आते हैं, उनका अधिकार पहले है भिक्षा पर। तो आप भिक्षा मांगने जाते हो तो आप उनका अधिकार छीन रहे हो। तो फिर उपमन्यु मान जाते हैं, बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगा फिर से भिक्षा मांगने। फिर थोड़े दिन होते हैं तो फिर गुरुदेव देखते हैं कि उपमन्यु वैसे के वैसे ही है, तो वो उनको कहते हैं कि आप जो पहले भिक्षा लाते थे वो मुझे देते थे, मैं उनमें से आपको कुछ नहीं देता था। दूसरी बार आप देते थे तो वो भी मैं आपको कुछ नहीं देता था। दूसरी बार आपने भिक्षा मांगना बंद कर दिया, तो फिर अभी आप पतले क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं गायों का जो सेवा करता हूँ, तो गायों के दूध पे मैं निर्भर हूँ, गायों का दूध पीता हूँ। तो गुरुदेव फिर डांटते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी करना ही नहीं है। ये गुरु निंदा हो गई है, गुरु द्रोह हो गया है, आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। आप जो भी कुछ करते हैं वे मेरी आज्ञा के अनुसार ही आपको करना चाहिए, तभी आप में गुरु भक्ति आएगी और हृदय में प्रवेश करेगी। फिर वो मान जाते हैं उपमन्यु। फिर थोड़े दिन होता है तो फिर वैसे के वैसे ही होते हैं। तो फिर गुरु उनको पूछते हैं कि आप भिक्षा भी नहीं मांगते हो, दूध भी नहीं पीते हो, तो अभी आप क्या करते हो? तो उपमन्यु कहते हैं कि जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं वह गाय के स्तन से दूध पीते हैं, तो उसमें से जो झाग निकलता है, जो बबल्स निकलते हैं, तो उस पर मैं निर्भर हूँ। वो मैं बहुत अधिक मात्रा में मैं खाता हूँ, तो मैं अपना रक्षण और भरण पोषण ऐसे करता हूँ। तो गुरुदेव ने फिर डांटा धौम्य ने, ऋषि धौम्य ने। तो वो बोला कि ऐसा भी आपको क्यों करना चाहिए था? फिर वो गौशाला देखने जाते हैं, तो वो देखते हैं कि गाय भी लगभग आप पर इतना प्रसन्न है कि आपने इनकी सेवा की है कि गाय अधिक मात्रा में झाग उत्पन्न कर रही है केवल आपके लिए। उनको पता है कि आप इसी पर निर्भर हो, मगर ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय जो होती है, बछड़े का जो अधिकार पहले होता है गाय के दूध पर, और आप उसमें बीच में टांग अड़ा रहे हैं, तो आपको ये भी पाप लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको करना ही नहीं है। ये मैंने आपको ये कहा ही नहीं है करने के लिए। तो उपमन्यु फिर मान जाते हैं, बोला गुरु आ गया, जैसी गुरु आ गया। फिर थोड़े दिन होते हैं तो एक दिन वह जंगल में चले जाते हैं, बहुत उनको भूख लगती है, तो जंगल में जाते हैं और अर्क नाम का एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते वह खा लेते हैं। और उसके पत्ते बहुत ही विचित्र स्वाद वाले होते हैं, खट्टे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, तो दो तीन स्वाद उसमें मिले हुए होते हैं। तो वह खा के उनका हाल ऐसा होता है कि उनकी दृष्टि चली जाती है, वह अंधे हो जाते हैं उपमन्यु। और उपमन्यु अंधे हो जाते हैं तो फिर वह चलते चलते जंगल में फिर कहाँ दिखता नहीं है, तो एक कुएं में वह नीचे गिर जाते हैं। और सूर्य फिर ढलने को होता है, और फिर बाकी सब शिष्य देखते हैं कि भाई सभी लोग तो फिर से आ गए हैं आश्रम में, उपमन्यु नहीं आया है। तो गुरुदेव को भी पूछा जाता है, गुरु भी चिंता करते हैं कि उपमन्यु कहाँ है। तो शिष्य कहते हैं कि आपने उनको गाय चराने के लिए भेजा था, मगर फिर वहां से आया ही नहीं है। तो फिर गुरुदेव को पता चल जाता है कि कदाचित मैंने उसको भोजन, दूध और झाग सभी से दूर रखा, तो लगभग वो कहीं तो जंगल में गया है। फिर वो सभी लोग, गुरु कहते हैं कि चलो हम उनको ढूंढने जाते हैं जंगल में। तो सभी लोग ढूंढने जाते हैं और सब लोग चारों दिशाओं में चिल्लाते हैं उपमन्यु उपमन्यु। और फिर गुरुदेव और थोड़े शिष्य होते हैं, वहां से आवाज आती है सामने से कि गुरुदेव मैं यहीं हूँ, मैं यहीं कुएं में गिर गया हूँ, आप देखिए। तो फिर गुरुदेव ऋषि धौम्य जाकर देखते हैं कि हाँ आप तो सही में गिर गए हो। फिर उनको पूछा जाता है कि आप ये कैसे हुआ? तो धौम्य उपमन्यु बताते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं जंगल में आ गया और मैंने अर्क जो वृक्ष था उसके पत्ते खा लिए, और उससे पत्ते खाने से तुरंत बाद में अंधा हो गया। तो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं कुएं में गिर गया हूँ। तो अब कहिए मैं क्या करूँ गुरुदेव? तो गुरुदेव
कहते हैं कि पुत्र आप एक काम कीजिए, आप अश्विन कुमार जो है, अश्विन कुमार हमारे दो जुड़वा भगवान हैं, भगवान कह सकते हैं, देव कह सकते हैं, जो सेलेस्टियल फिजिशियंस हैं, जो देवताओं के वैद्य आप कह सकते हैं। तो उनकी एक सुंदर स्तुति है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बहुत सुंदर उनकी लंबी सी स्तुति है, वह उनको सिखाई होती है उपमन्यु को। तो ऋषि धौम्य उनको कहते हैं कि कृपा करके पुत्र ये जल्दी से अश्विन कुमार देव को बुलाया जाए, ये स्तुति आप अपने हृदय से गाइए, ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, आप इनको उनको बुलाइए के माध्यम से। और फिर सुंदर स्तुति करते हैं उपमन्यु वहीं कुएं में खड़े खड़े। और होता यूं है कि बहुत ही प्रसन्न होते हैं अश्विन कुमार, और वह वहां पर ही प्रकट हो जाते हैं कुएं में। और अश्विन कुमार कहते हैं कि मैं बहुत ही, हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए हैं आपकी स्तुति से, तो मैं आपके लिए कुछ भोजन लाया हूँ, दिव्य भोजन है, आप इसके खा लीजिए और आपकी आंखें फिर से आ जाएगी। फिर उपमन्यु कहते हैं कि नहीं, मैं इसको अपने गुरु को दिए बिना मैं नहीं खाऊंगा। तो अश्विन कुमार देव होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप खा लीजिए, आपके जो गुरु है वर्षों पूर्व उन्होंने भी ऐसा ही किया था, उन्होंने भी हमारा आह्वान किया था और हम आए थे, और उन्होंने, उनको भी मैंने जब ऐसा दिव्य भोजन दिया था तो उन्होंने अपने गुरु को दिए बिना स्वयं खा लिया। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, वो उसमें कोई चिंता नहीं है, आपकी आंखें आ जाएगी। मगर इस बार फिर से उपमन्यु कहता है कि नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए देव, कि मैं इस बार मैं नहीं मानूंगा। मैं ये समझ गया हूँ कि मुझे जो भी मिलता है मुझे गुरु को पहले देना है और फिर ही मैं खाऊंगा। तो मैं अपने गुरु को, ये जो आप मुझे दिव्य भोजन दे रहे हैं, तो उसको मैं पहले गुरु को ही दूंगा और फिर ही मैं इसको ग्रहण करूंगा। और फिर अश्विन कुमार बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये एक परीक्षा होती है। तो देव भी कहते हैं कि वाह, हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, आपकी जो गुरु भक्ति है बहुत सुंदर है, बहुत ही प्रख्यात है। और मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपके जो गुरु है उनके जो दांत है वह तो काले लोहे जैसे हैं, ब्लैक आयन, ब्लैक आयन के जैसे दांत है, मतलब कुछ भी तोड़ा जा सकता है ऐसे दांत है, मगर काले कलर के हैं। आपके दांत मैं सोने के देता हूँ, आपके पूरे सभी दांत सोने के होंगे। उपमन्यु को ऐसा वरदान देते हैं अश्विन कुमार। और फिर गुरु को भोजन देने के बाद ही वह खाते हैं, और फिर उनकी दृष्टि फिर से आ जाती है वहीं पर, और अश्विन कुमार फिर चले जाते हैं। और फिर ऋषि धौम्य भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं उपमन्यु को ये देखते हुए कि उसने पहले, सबसे पहले इस बार मुझे भोजन दिया है, जो भी मिला है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा, बल्कि उन्होंने देव जब दे रहे हैं, देव का भोजन भी, दिव्य भोजन भी मुझे उन्होंने पहले अर्पित किया और फिर ही उन्होंने स्वीकार किया। तो मैं बहुत ही आपसे प्रसन्न हूँ, यही मुझे आपको सिखाना था। और फिर ऋषि धौम्य भी उनको एक वरदान देते हैं कि जाइए उपमन्यु, आपके मन में, आपके मन में, आपकी मेमोरी में सभी वेद जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वह सदैव सदा सदा के लिए विद्यमान रहेंगे, उसका विस्मरण कभी भी नहीं होगा। और सभी धर्म शास्त्रों का जो मैंने आपको ज्ञान दिया है उसका भी विस्मरण आपके मन में से कभी नहीं होगा। तो सदैव वह प्रज्वलित रहेंगे, एक प्रकाशमय, सदैव एक जैसे दिया जलता है वैसे ही वेद भी आपके मन में सदैव दिए के भांति ऐसे ही प्रकाशमय रहेंगे। आप जब भी याद करेंगे आपको याद आ जाएंगे, धर्मशास्त्र के सभी नियम भी आपके मन में रहेंगे सदा सदा के लिए। तो ऐसा सुंदर वरदान ऋषि धौम्य इनको अपने शिष्य उपमन्यु को देते हैं। ये कथा का सार यही है, इससे यही हमें सीखना चाहिए कि जो गुरु भक्ति की क्यों, क्या आवश्यकता है, गुरु के प्रति अगर भगवत भाव हो, हम उन्हीं को भगवान माने और हम उनको ही पूजे, तो उनके अंदर साक्षात भगवान आकर ही हमें वरदान देते हैं। ऐसे ही ज्ञान के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से आते हैं। कोई दिव्य वरदान भी दे सकते हैं, जैसे ये सोने के दांत वाला, और वेद कभी भूला ना जाए, धर्मशास्त्र कभी भूला ना जाए, ये बहुत बड़ा वरदान है। अगर आप देखें कि ज्ञान
इनको संपूर्ण दे दिया और ये भी वरदान दे दिया कि आप में से ये आपके मन में से कभी जाएंगे ही नहीं, तो ज्ञानी ही अगर पुरुष होगा, उपमन्यु सदैव ज्ञानी ही होगा, तो आप सोचिए कि वह कभी भी अधर्म के चपेट में नहीं आएगा, वह धर्म का पालन ही करेगा और वह धर्म के पालन से ही वह तुरंत ही जल्दी से जल्दी मोक्ष के तरफ प्रयाण करने लगेगा। तो ऐसा उनको ज्ञान दे दिया और कभी भी उनसे कोई पाप नहीं होगा। तो सुंदर वरदान है ये, बहुत ही ऊंचा और बहुत ही दिव्य वरदान कहा गया है। अगर संपूर्ण ज्ञान ही दे दिया और कभी ज्ञान का विस्मरण ना हो, तो सुंदर वरदान यही हमें सिखाता है कि गुरु भक्ति से हमें क्या कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। और जब भोजन हमें मिलता है तो हमको सभी के साथ बांट के खाना है। इसीलिए महाभारत में ही है, लोग बहुत सोचते हैं कि राजा होते हैं उनको तो बहुत आनंद होता है, उनका जीवन भव्य होता है, दिव्य होता है, उनको क्या समस्या है। मगर सबसे अधिक समस्या राजा को ही होती है, क्योंकि राजा स्वयं सभी प्रजाओं की रक्षा करता है, उसके चिंतन में लगा हुआ होता है और प्रजा का अधर्म का दंड राजा को भी भोगना पड़ता है। तो युधिष्ठिर राजा जब चक्रवर्ती सम्राट बने थे, तो वह इसमें वर्णन है महाभारत में कि सबसे पहले 1 या 1.25 लाख स्नातक ब्राह्मण इंद्रप्रस्थ में रोज भोजन करते थे, सोने के पात्र में उनको भोजन दिया जाता था। द्रौपदी पूरा जो उनका किचन है पूरा संभालती थी, भोजन कितना बनना है, किसको देना है। सभी ब्राह्मण आते ही जाते थे, आते ही जाते थे, लाखों की संख्या में सभी को भोजन अपार दिया जाता था। जो भी याचक आते थे, जो जो भी उसके पूरे राज्य में जो भी स्त्रियां थी, जो भी गर्भवती स्त्रियां थी, जो वृद्ध थे, जो छोटे बच्चे थे, उनको पहले फिर भोजन दिया जाता था। फिर पूरे जो महल में उनके जो नौकर चाकर है उनको दिया जाता था। उसके पहले फिर जो हाथी घोड़े जो भी प्राणी हैं उनको भी उनका पर्याप्त भोजन दिया जाता था। फिर युधिष्ठिर के महल में जो जो भी नौकर चाकर है हजारों की संख्या में थे, तो उनको फिर भोजन दिया जाता था। फिर युधिष्ठिर के 4 भाई खाते थे फिर युधिष्ठिर स्वयं खाते थे और उसके बाद उन्हीं के पात्र में फिर द्रौपदी खाती थी। तो आपको अगर लोगों को लगता है कि राजा बनना बहुत ही सरल है, राजा बनने के बाद ही बहुत जीवन आनंदमय होता है, तो वास्तविकता ये है कि राजा बनने के बाद ही बहुत ही कार्य और भार बढ़ जाता है। उसकी जो उसका कर्तव्य होता है वो बढ़ जाता है। अगर वो कोई भी चूक कर दे तो पूरा राज्य तहस नहस हो सकता है। तो राजा को बहुत ही ध्यान रख के जीना चाहिए। तो ऐसे ही ये हमें सीख देती है कथा कि हमें भोजन भी हमारे घर में सभी के साथ बांट के खाना है। और हम जितना झुकेंगे अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, हमारे परिवार कुटुंब के जो वृद्ध है, जो अगर कोई ज्ञानी है तो उनके प्रति अगर हम झुकते हैं, हम जब भी झुकते हैं तो हम एक अनुभूति अवश्य करते हैं, आप भी करते होंगे, कि हमारा जो अहम है वो गलता है, वह थोड़ा घिसता है। और अहम का गलना घिसना बहुत ही आवश्यक है। तभी ही ये अहम जब धीरे धीरे पूरी तरह से सूख जाता है, हम में ऐसा अभिमान ही नहीं रहता है, और फिर हमारा जो इनर सेल्फ कह सकते हैं, कॉन्साइंस कह सकते हैं, अंतःकरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के साथ ही हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। और फिर ऐसे अगर गुरु के चरण में हो तो फिर हमें दिव्य ज्ञान जल्दी से मिलता है, और वह ज्ञान अंदर आने से फिर वह अंदर रहता है। धीरे धीरे ज्ञान भी अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए फिर धीरे धीरे हम अगर उस पर चिंतन करते रहे तो वो ज्ञान ही अपने आप परिपक्व होता है हमारे सहायता के साथ में। तो इसके लिए हमको अभिमान का नाश होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए हम जब माता पिता को, ये जो हमारे शास्त्रों में माता पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का जो नियम है, भगवान में हम मंदिर जाते हैं या भगवान घर में होता है तो हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उसका यही अर्थ है कि हम हमारे अहम को नीचे लाए। हमारे ऊपर भी कोई बड़ा है, गुरु है, माता पिता है, पत्नी के लिए पति है,
संतानों के लिए माता पिता है। तो यही सुंदर संदेश हमें ये कथा देती है कि गुरु का एक शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति जो धौम ये उपमन्यु में देखा गया है, वैसे ही हमें अपने गुरु के प्रति समर्पण और सर्वस्व ही समर्पण करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो ही हमको गुरु सर्वस्व दे सकते हैं। सर्वस्व माने सर्वस्व ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि हमें पात्रता सिद्ध करनी होती है। जैसे एक पुरुष धर्म को समर्पित है और अपनी पत्नी पुरुष अपने पति को समर्पित है वह समर्पण से ही सभी लोग गलते हैं, सूखते हैं और पिघलते हैं। समर्पण से आप किसको भी पिघला सकते हैं, समर्पण से आप किसको भी जीत सकते हैं। और समर्पण से अगर जीत लिया जाए तो फिर सामने वाला मनुष्य संपूर्ण रूप से आपका हो जाता है और फिर वह अपार कृपा दिखाता है और करता है। जैसे एक भक्त भी भगवान को समर्पित हो जाता है तो सर्वस्व ही देने के बाद फिर भगवान भी अपना सर्वस्व देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उनको उत्सुकता हो जाती है कि मेरे भक्त ने मेरे लिए भौतिक सुखों का, लौकिक सुखों का त्याग किया है, मैं उसको ऐसा सुख दूंगा कि पृथ्वी स्वर्ग लोक से भी ऊंचा हो। तो ऐसा हमें भगवान के प्रति भगवत भाव, भक्ति ऐसी आनी एक एक अनिवार्य कही गई है, अगर हमको इस जीवन के सागर को तर के पार लगाना है। तो ये सुंदर कथा मैंने आपको कही, ये महाभारत से ली गई है। अगर आपको ऐसी ही कथाएं पसंद है, ऐसे सूक्ष्म भावार्थ वाले कथाएं पसंद है, संवाद पसंद है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम की एक बहुत ही सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी में आपको संपूर्ण वैदिक वांग्मय का ज्ञान मिलेगा एक एक छोटे छोटे वीडियोस में। और अगर आप वह सुन के फिर अपने आप जीवन में उतारते हैं तो भी आपका कल्याण धीरे धीरे आरंभ हो ही जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।